Now the class is going to be recorded, and in today's class, I'm not sharing any whiteboard. Here I am with you to interact with you. It will be means an interactive class. And remember that ki when I talk about ki what you have to take, how I have gone with the romantic age, I have gone with what I have gone with. You will come to know कि romantic poetry, romantic novelist, romantic जो prose writers हैं, these things I have taken even the criticism of romantic already I have done. Just I want to know कि when I talk about romantic age, always you have to keep in your mind कि it's a very important age because this particular age is addressed as the golden age of poetry. ये जो एज है इसको हम किसके नाम से जानते हैं? गोल्डन एज ऑफ पोइट्री के नाम से जानते हैं. So remember that कि whenever you talk about this age, why this age is called the golden age of poetry? Number one point. Number two point कि what other things except poetry, what other things you find? Before taking these things, one thing I would like to include, one thing I would like to tell you, कि whenever you talk about romantic age, then remember that कि it covers the period from 1798 to 1837. 1798 ईस्वी से लेकर के 1837 ईस्वी तक का जो पीरियड रहा है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं. देन you can understand कि what is the date? The date is 1798 to 1837. 1798 से लेकर 1837 तक. Already I have gone. Already I told you. Why 1798 is important? 1798 is important because you find what you find the publication of the lyrical ballad. The first volume of lyrical ballad came in 1798. That was the jointly work of S.T. College and William Wordsworth. And this particular that is called known as the magnum opus, that is known as the masterpiece of romantic poetry. रोमांटिक एज का जो पोइट्री है उसका मैग्नम ऑपस माना जाता है या उसका वह मास्टरपीस था. यू विल कम टू नो कि ये जो ये चीज रहा है. हियर यू फाइंड व्हाट? हियर यू फाइंड टू टाइप्स ऑफ पोइट्री. टू टाइप्स ऑफ पोइट्री केम इन मार्केट. एंड व्हाट वाज दैट? एक तो आपका ये था कि सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री. दूसरा आपका था नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री. तो सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री वाज स्टार्टेड बाय हूम? इट वाज स्टार्टेड बाय एस टी कॉलेज. And natural concept of poetry was started by whom? It was started by William Wordsworth. So what I want to say, what I want to tell you, कि do you find the natural concept of poetry? Do you find the supernatural concept of poetry in the in previous ages? In previous ages, especially in Restoration age, especially in Augustan age, especially in age of sensibility. जो restoration एज था that is also known as age of John Dryden. Augustan age that is also known as age of Alexander Pope. Age of sensibility that is also known as age of Dr. Samuel Johnson. Do you find? You will say कि to some extent. You can't deny, but you have to use the word to some extent because this is why I have taken pre-romantic poetry. जो जो रोमांटिक एज का पोइट्री का कॉन्सेप्ट आप पाते हैं जिसमें इमेजिनेशन है, जिसमें फीलिंग्स है, जिसमें इमोशन है, जिसमें सब्जेक्टिविटी है, जिसमें पर्सनालिटी है, जहाँ पे यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स है, जहाँ पे पैंथिज्म है, जहाँ पे ह्यूमनिज्म है, जहाँ पे कल्ट ऑफ ब्यूटी है, जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म है, जहाँ पे लिबरलिज्म है, जहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, जहाँ लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, जहाँ पे रूसो का रिटर्न टू नेचर है, जहाँ पे आपको उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे इमाइली का इम्पैक्ट उनको उनके वर्क का देखने को मिलता है, जहाँ पे वो कहते हैं मैन इज बॉर्न फ्री बट चेंड एवरीवेयर, जहाँ पे विलियम गॉडविन नजर आते हैं, उनका पॉलिटिकल जस्टिस आपको देखने को मिलता है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है. ये सारी चीजें रोमांटिक एज में होती है. तो जो रोमांटिक एज है जिसे हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये 1798 में आया, तो ऐसा नहीं था कि इट केम सडनली. देयर वर सम रीजंस, देयर वर सम पॉइंट्स which contributed, which consolidated this एज. तो ये जितना भी बातें आपको मैंने बताया, व्हाट यू फाइंड, जो भी बातें मैंने आपको बताई, चाहे आप ओपन स्काई की बात करते हैं, चाहे आप बेयर स्काई,
Preeti Sagar is saying कि she is not getting my voice. Just I want to know कि are you getting or not? Okay, okay, okay. So व्हाट आई वांट टू से कि अगर मैंने आपसे ओपन स्काई की बात किया, अगर मैंने आपसे लवली मून की बात किया, अगर मैंने आपसे जो है बेयर स्काई की बात किया, अगर मैंने आपसे ब्राइट सन की बात किया, अगर मैंने आपसे पीजेंट की बात की, अगर मैंने आपसे लेबरर की बात किया, अगर मैंने आपसे जो है जो डेली वेजेस है उनको मैंने लेकर के बात किया, अगर मैंने आपसे पुअर विलेजेस के बारे में बात किया, अगर मैंने आपसे रस्टिक लैंग्वेज के बारे में बात किया, अगर मैंने आपसे रस्टिक पीपल के बारे में बात किया, अगर मैंने चर्पिंग ऑफ द बर्ड को आपको सुनाया, अगर मैंने गर्गलिंग साउंड ऑफ द रिवर को सुनाया, अगर मैंने आपको क्लाइंबिंग ऑफ द मून का पिक्चर दिखाया, अगर मैंने आपको ये दिखाया कि दिस इज द ओपन फील्ड वेयर यू कैन लिव, वेयर यू कैन एंजॉय. So again, that question Shamim is asking, do you find these things in Restoration Age? Do you find these things in Augustan Age? Do you find these things in Age of Sensibility? You will say no, sir. You will say no, sir. We don't find. वहां पे हम किसको पाते हैं? अब्सालम को पाते हैं. वहां पे किसको पाते हैं? एचिटोफेल को पाते हैं. वहां पे किसको पाते हैं? बेलिंडा को पाते हैं. वहां पे किसका कोट नजर आता है? चार्ल्स सेकंड का कोट नजर आता है. वहां पे क्या है? पब है. वहां पे क्या है? रेस्तरा है. वहां पे क्या है? कॉफी हाउस है. वहां पे इंग्लैंड की वो सड़कें हैं, इंग्लैंड की वो गलियां हैं, जहाँ पे एक लग्जूरियस लाइफ है, जहाँ पे लॉर्ड जेंटिल मैन है, लॉर्ड है, लेडीज है, फैशनेबल, दे आर लिविंग इन फैशनेबल वर्ल्ड. There is no open field. You can't get such a type of beauty. Just imagine कि how much difference do you find. एक तरफ आपको मैं सजा करके पूरा परोस दूं रेस्टोरेशन एज को, एज ऑफ सेंसिबिलिटी को और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को, दूसरी तरफ मैं सजा करके इफ आई गिव यू वर्ड्सवर्थ, इफ आई गिव यू जॉन कीट्स, इफ आई गिव यू टेनिशन, नॉट टेनिशन मीन्स टीबी शेली, लॉर्ड बायरन, एसटी कॉलेज, रॉबर्ट सदे, वट एवर द नेम यू फाइंड हियर. तो एक आपको लगेगा कि एक पूरा एक डिफरेंस है, अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है. और वह डिफरेंस किस चीज का है? वह डिफरेंस है नेचर का और ह्यूमन नेचर का, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था. यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड ह्यूमन नेचर. वेयर यू फाइंड ह्यूमन नेचर इन रेस्टोरेशन एज. वहां का जो पीपल है उनका सोच क्या है, वे क्या सोचते हैं, व्हाट दे वांट टू डू, व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डिसलाइक, दैट वाज द बिग क्वेश्चन. वे क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी अपनी लाइफ कैसी है. और ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, कुछ हद तक अगर देखा जाए कि ह्यूमन नेचर को ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी यू कैन जस्ट सी. Whether you read essay on mind, whether you read essay on criticism, whether you read epistle to Dr. Arbuthnot, whether you read of the rape of the law, whether you read Absalom and Achitophel, whether you read Dunciad, whatever the poem you would like to take, you will find that there is the what there such a literary devices have been used जहाँ पे irony है, satire है, irony और satire के अलावा wit है, रीजन है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यूज ऑफ ऑफ माइंड है. बट देर इज नो अनलॉकिंग ऑफ हार्ट एंड सोल. तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप इन सब चीजों को पैरेलल वे में देखने की कोशिश करेंगे कि वाई शमीम इज हियर, वाई शमीम इज इंटरेक्टिंग विद यू, ऑलरेडी यू नो, बट हियर आई एम just to make a picture how the world, how the romantic world is, and how the world of neoclassical was, how the world of neoclassical was, and how the romantic world is. You can make this difference in a beautiful manner, in artistic way when I interact with you. This is why Shamim is here. This is why I want to say something कि एक आपको हमेशा अपने माइंड में एक तसव्वुर करना है. यू हैव टू इमेजिन कि नाउ यू आर इन रोमांटिक वर्ल्ड, और उस रोमांटिक वर्ल्ड को सजाने में, उस रोमांटिक वर्ल्ड को खूबसूरत बनाने में, उस रोमांटिक वर्ल्ड के अदब को लिखने में कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज रही है, अचानक वो नहीं आई है. उनमें से आई हैव काउंटेड, I have told some names: William Godwin. I told you Rousseau. I told you also some great books, the Gita का translation, contribution of the French Revolution. फिर मैं वही बात करूंगा कि इनके अलावा और क्या,
तो इनके अलावा और क्या जब क्वेश्चन होगा, तो ऑलवेज यू हैव टू कीप इन योर माइंड प्री रोमांटिक पोएट्स। व्हेन यू से कि इनके अलावा और क्या, एक्सेप्ट दीज हु आर अदर, तो एक्सेप्ट दीज you will come to know कि there are some other writers also, and you will come to know they are the pre romantic poets. So here I will tell you the basic difference between pre romantic poets and romantic poets. सबसे पहला चीज कि जो प्री रोमांटिक पोएट्स हैं, दे केम इन ऑगस्टन एज, वे ऑगस्टन एज में आते हैं, दैट वाज द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन कि व्हाट वाज ऑगस्टन एज, व्हाई अलेक्जेंडर पोप वाज फेमस। रिमेंबर दैट कि अलेक्जेंडर पोप वाज द leading poet of Augustan age, and the particular pre-romantic poets they were the minor poets। Augustan age के जो poets थे वे leading poets थे, और जो poets थे वे minor poets थे। Two things, number one, when I talk about Augustan age, when I talk about some other ages, especially romantic age, pre-romantic poets, तो Augustan age में एक बहुत important point था, that was the correctness, that was the strict norms of literature, some literary rules, some literary norms which you have to follow, which you can't avoid, which you can't violate, which you can't escape, you have to go with that thing। जैसे हीरोइक कपलेट में लिखना कंपलसरी था, पाज का सेजरा का यूज, ह्यूमन नेचर के बारे में बात करना। नाउ प्री रोमांटिक ने क्या किया, प्री रोमांटिक ने एक परिवर्तन लाए, दे ब्रॉट अ चेंज। And what the changes have been brought by them, they brought a change, and that change was brought कि उन्होंने जो चेंज को लाया वह एक बेसिक चेंज ये था कि उन्होंने ह्यूमन नेचर की जगह नेचर के बारे में बात करना शुरू किया। इंस्टेड ऑफ ह्यूमन नेचर दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट नेचर। जैसे मैं आपको एक नाम बताऊं कि सबसे पहले और बड़े पोएट थे जेम्स टॉमसन। ऑलरेडी यू हैव गॉन सब नोट किया हुआ आपका, तो नोट करने के बाद वो सारे लेक्चर के बाद मैं समझता हूँ अब ज्यादा आसानी से आपको ये चीज अच्छी लगेगी और समझ में आएगा कि देयर वाज अ पोएट जेम्स टॉमसन। जेम्स टॉमसन ने लिखा है द सीजन। आप मुझे ये बताइए, जब आप टाइटल पढ़ते हैं तो द सीजन, तो द सीजन से क्या आपको ह्यूमन नेचर के बारे में पता चल रहा है, या समथिंग नेचर मीन्स सीजन दैट इज विंटर समर स्प्रिंग ऑल दिस, यू फाइंड विंटर समर स्प्रिंग all these things। So what I want to say ki when you find the season, that is the first poem of pre-romantic era, and it started in 1726 but completed in 1730। 1726 में स्टार्ट होता है, 1730 में कंप्लीट होता है। एंड व्हाई जेम्स थॉमसन इज रिमार्केबल, बिकॉज जेम्स थॉमसन स्टार्टेड टू राइट अबाउट नेचर, नेचुरल ऑब्जेक्ट। Again, Rajesh is saying कि my voice is breaking. Just I want to know कि is it breaking? I think कि in my area there is a good connectivity. Means there is there is not bad network but a good network one। there is a slight chance कि हो सकता है कि जहाँ से एक दो लोग कह रहे हैं वहाँ पे पुअर नेटवर्क हो। So कोई ऐसी बात नहीं, बिकॉज आई डिडेंट फाइंड अनस्टेबल नेटवर्क। वेन एवर देर इज अ अनस्टेबल नेटवर्क ऑलवेज आई फाइंड ऑन माई स्क्रीन, नॉट अ सिंगल टाइम टूडे आई फाउंड इट। सो व्हाट आई वांट टू से कि जब आप जेम्स थॉमसन का नाम लेते हैं तो आपको हमेशा एक ध्यान में रखना है कि जेम्स थॉमसन का मतलब ये होता है कि अगेंस्ट अलेक्जेंडर पोप। जो अलेक्जेंडर पोप का तरीका था वह जेम्स थॉमसन में आपको नहीं मिलेगा। जेम्स थॉमसन टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर, and this external beauty of nature means he is telling what he is telling the beauty of natural objects। और वह जो नेचुरल ऑब्जेक्ट का ब्यूटी है वह लंदन की गलियों में नहीं है, लंदन के शहरों में नहीं है, लंदन के कॉफी हाउस को लेकर के उन्होंने बात नहीं किया, लंदन के लॉर्ड और लेडीज को लेकर उन्होंने बात नहीं किया, वह किंग चार्ल्स सेकंड का दरबार नहीं है, वहां बिलिंडा नहीं है, वहां क्यूपिन नहीं होंगे। वहां पे जो एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर है, यू कैन जस्ट सी, यू कैन जस्ट इमेजिन, वह क्या है, वह इंग्लैंड का जो रूरल एरिया है, जो इंग्लैंड का ब्यूटीफुल विलेज है, जो इंग्लैंड के जो शेफर्डेस हैं, जो इंग्लैंड के पीजेंट्स हैं, जो इंग्लैंड के फार्मर हैं, या अगर मैं कहूँ इनके अलावा भी अगर उन्होंने इनके बारे में बात किया तो ठीक है, अगर नहीं भी तो जो इंग्लैंड का जो अपना गांव का पिक्चर है, दैट वाज अबाउट मींस विलेज में जो ट्रीज है, प्लांट्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, जो उसका अपना एक एक खूबसूरती है,
उस खूबसूरती को उन्होंने हमारे सामने परोसा, और बेहतरीन ढंग से परोसा ब्लैंक वर्ड से। तो एक तरफ जहां हीरोइक कपलेट था, उस हीरोइक कपलेट के मार्केट को, अनडाउटली दैट मार्केट हैज बीन decorated, that market has been undoubtedly, you can say ki it was popularized by Alexander Pope, but in that market you find a new product। उसी मार्केट में, अलेक्जेंडर पोप के ही मार्केट में, उन्हीं के जमाने में एक नया प्रोडक्ट आता है, और उस प्रोडक्ट को हो सकता है उस समय के लोगों ने वेलकम ना किया हो, लेकिन आज जब आपका जमाना है, जब हमारा जमाना है, आज हम 400 साल बाद अगर उस पर बात कर रहे 21वीं शताब्दी में, तो इस जमाने में, इस क्लास में, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट अलेक्जेंडर पोप, वी आर टॉकिंग अबाउट हु, वी आर टॉकिंग अबाउट जेम्स टॉमसन। और कोशिश ये की जा रही कि जेम्स टॉमसन को अलेक्जेंडर पोप के, आई एम नॉट सेइंग कि उनकी पैरेलल खड़ा किया जाए, लेकिन ये जरूर कि जेम्स टॉमसन ने एक नया चीज किया, दैट वाज इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पोइट्री। एंड व्हाट द इनोवेशन, कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग heroic couplet, he used what, he used blank word। तो उस जमाने में, जब एक तरह से अगर मैं कहूं कि ब्लैंक वर्ड्स यूज करना अपने में एक पाप जैसा रहा होगा, और ये कहा जाता होगा यू आर नॉट अ गुड पोएट, उस जमाने में इतनी ताकत दिखाना, इतना इतना अपने अंदर एक एम्बिशन लाना, नो आई विल यूज इट, वेदर आई एम गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ माइनर पोएट और मेजर पोएट, the poet in first grade and the poet in second grade, that doesn't matter, but that man did his job। उस आदमी ने अपने काम को किया। सो हमेशा जब भी ध्यान में रखना है कि रोमांटिक एज का मतलब कि केवल 1798 नहीं है, उससे पहले प्री रोमांटिक, उनमें से भी एक बड़ा नाम जेम्स टॉमसन, जिन्होंने एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर को बताया कि हाउ द मून सीम्स, हाउ द यू मे से कि राइजिंग ऑफ द सन, इट्स रेज, बेयर स्काई और ओपन स्काई, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, हाउ डू यू सी, हाउ कैन यू सी, हाउ कैन यू बिहोल्ड इट्स ब्यूटी। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि कितना साल हो गया होगा, अगर मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप लोग पर डे देखते हो, लेकिन बट दोज हु आर लिविंग इन इलाहाबाद, स्पेशली दोज हु आर लिविंग इन कानपुर, इन सिटी एरिया, if I ask you कि how many years have gone when you saw a beautiful moon in the open sky, so you don't remember। कभी हो सकता है कि रात में ट्रेवलिंग करते समय अगर आप वो भी जा रहे हो, देन यू saw that beautiful sky, that beautiful moon, बट आई डोंट थिंक, वरना 8 बाई 8 का कमरा बहुत ज्यादा होगा, अगर आपका अपना घर होगा तो 16 बाई 12 का, 12 बाई 12 का वही कमरा, वही डाइनिंग टेबल, वही बेड, वही किताबें, वही सारी चीजें, but you don't have, even you don't have time, and when you have time then you don't have place। that the two things। समय नहीं है, अगर समय है तो जगह नहीं है। कौन सी जगह? जहां पे आप ओपन स्काई को देख सके। इवन यू विल से कि सर मैं छत पर जब आप गए होंगे तो दिन में गए होंगे, ओपन स्काई में मून को देखने का तस्वर कब हुआ, आई डोंट नो। हाँ, वो लोग जरूर है, उन लोगों ने देखा होगा जिन्होंने चांद को देख करके जो है अपना व्रत तोड़ा होगा, मैं उनके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, दे गॉट द चांस, साल भर में उनको एक मौका मिल जाता है ऐसा करने के लिए। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि वेयर आर वी, where do we stand today, and how much materialistic life that started from industrial revolution, and especially in the age of Pope, in the age of means yeah, Dr. Samuel Johnson, that particular industrial life, that particular materialistic life which started, and how, where are we, जबकि we are living in India where there are so many rivers, where there are so many मतलब so many places, open field, गंगा और यमुना का जो दोआब है, जो ये तो पूरा ओपन फील्ड से भरा हुआ ज्यादातर, यहीं पे पॉपुलेशन भी, ये तमाम चीजें हैं, बट ड्यू टू द डेंस पॉपुलेशन हमने जंगल तो बनाया, लेकिन शायद कंक्रीट के जंगल बना दिए, आयरन के जंगल, ब्रिक के जंगल, ऑल दीज थिंग्स। सो व्हाट आई वांट टू से कि जब आप उस पोइट्री को पढ़ेंगे तो वह पोइट्री एक आपसे अपील करती है, और वह अपील क्या है कि you have given, undoubtedly you have given the importance of human nature in restoration age, in Augustan age, and in age of sensibility, but now this is time to shift your position from human nature to nature। और यह जमाना है, यह समय है जब आपको अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए, अपनी सोच में तब्दीली लाना चाहिए, अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, और ह्यूमन नेचर से आपको नेचर की दुनिया में चलना चाहिए। फिर वही क्वेश्चन आएगा कि अगर आप यहाँ से बदलाव में जाते हैं तो क्या आप पाएंगे? कहीं यह घाटे का सौदा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल आपको बेवकूफ बनाया जाएगा, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड तैयार की जाएगी जहाँ पे नो एजुकेशन,
नो मोरालिटी, अल्टीमेटली नथिंग एट ऑल। सो नो, नॉट एट ऑल, यह एक अपील है, यह एक रिक्वेस्ट है। और यह अपील, यह रिक्वेस्ट आपसे इसलिए की जा रही है कि आप अपनी पोजीशन को शिफ्ट करके यहाँ से हटके थोड़ा उधर चलिए। कुदरत की वादियां, खूबसूरत मंजर हो, और जहाँ पे कि एकदम ओपन स्काई हो। जब हम लोग, व्हेन आई वाज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, देयर वाज प्रोफेसर एम एम दास सर। प्रोफेसर एम एम दास सर ने बहुत बेहतरीन बात उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जीवन जीने की जो इच्छा है वह मरती जा रही है। और ये सबसे ज्यादा अगर मरी है तो विक्टोरियन और मॉडर्न एज में मरी है। तो ही जस्ट सेड, उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए कि जो पोयट है, जो जिसके अंदर जीने की कला सबसे ज्यादा होती, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है, वह कैसे अपने अपने आप को कन्फाइन कर रहा है। रोमांटिक एज में तो वह ओपन स्काई की बात करता है। जब आप टिंटन अबे पढ़ेंगे तो टिंटन अबे में एक लाइन आती है कि ग्रीनरी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी डोर। जो ग्रीनरी है वह घर के दरवाजे से शुरू हो रही है। इसका मतलब पोयट जो है दरवाजे पर, घर के मेन गेट पर खड़ा होगा, और वह देखता है कि देर इज द ओपन स्काई, एंड देर इज ऑल्सो व्हाट ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, देर आर व्हाट समथिंग, वो लेकिन जो पूरा ओपन फील्ड है इन मॉर्निंग, द ग्रीनरी स्टार्स फ्रॉम द वेरी डोर। फिर उन्होंने कहा यह तो एक जमाना था जो वर्ड्सवर्थ का था, जो कीट्स का था, जिन्होंने अपनी जिंदगी को उस तरह से गुजारा। लेकिन एक जमाना विक्टोरियन एज आता है, जहां मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड एक होटल में रुके हुए हैं, और वो होटल की खिड़की से दुनिया की खूबसूरती को देख रहे हैं, और उनके साथ भी देयर इज समवन विद हिम, उनको भी वह दिखाना चाह रहे हैं। तो जो उनके साथ है, इसीलिए वो कहते हैं डोवर बीच में एक देयर इज अ पोएम, कम टू द विंडो स्वीट इज द नाइट एयर, खिड़की के पास आओ, रात्रि में बहने वाली हवा खूबसूरत है। तो वहां पे आप देखिए जीवन का जो जो देखने का नजरिया है वह कन्फाइन होता जा रहा है। एक जगह रोमांटिक एज में ओपन डोर है, और विक्टोरियन एज में हम कहाँ पे अपने आप को देखते हैं कि हमारी देखने की उम्मीद खिड़की में तब्दील हो गई। वी आर जस्ट सीइंग द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड थ्रू विंडो। वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव स्पेस एट ऑल। जब आप मॉडर्न एज में आएंगे, वहां पे इतना खूबसूरत ढंग से बताया गया, वहां पे चीजों को जो विंडो से नहीं देखा जा रहा है, एक छोटे से होल से देखा जा रहा है। और अगर आप देखेंगे, देयर वाज एन अमेरिकन ड्रामेटिस्ट, वह जो है जो दैट इज आर्थर मिलर। आर्थर मिलर हैज रिटन अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रामा ऑल माय सन्स, एंड इन दैट ड्रामा ही सेज दैट कि वी आर लिविंग इन एन एली, ALLEY, जो जो एक तरह से जो है क्या है कि चूहों का घर है, वहां पे हम लोग रह रहे हैं। और उस चूहे के घर में एक मॉडर्न एज का रैट रेस है, कोई निकल रहा है, कोई जा रहा है, कोई निकल रहा है, कोई जा रहा है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि व्हाट द वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड, वेयर वी आर लिविंग, एंड हाउ मच दैट वर्ल्ड इज फ्रूटफुल, कहाँ तक वह वर्ल्ड फ्रूटफुल है। all these things you can take, all these things you can go. So what I want to say कि when you go with these points, या when you take these points, so you will come to know कि इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ जो मेरा बताने का मकसद है कि जब भी आप ऐसा तस्वुर करिएगा, जब भी आपके अंदर ऐसा कोई ख्याल आता है, तो एक दो दुनिया आपको सजी हुई दिखाई पड़ेगी। एक दुनिया आर्टिफिशियल है, एक दुनिया नेचुरल है। तो आज हम जिस क्लास में जिसके बारे में बात करें, दैट इज द नेचुरल वर्ल्ड, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्सवर्थ, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ कीट्स, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ शेली, बायरन, रॉबर्ट सदे, लेट पोयट, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री, जो भी पोएट्स का मैंने पढ़ाया नाम लिया, उनकी दुनिया है। फिर मैं गिना दूं कि उनकी दुनिया में इमेजिनेशन है, उनकी दुनिया में इमोशन है, उनकी दुनिया में फीलिंग्स है, उनकी दुनिया में जज्बात है, उनकी दुनिया में सब्जेक्टिविटी है, उनकी दुनिया में पर्सनालिटी है, उनकी दुनिया में ओपन फील्ड है, उनकी दुनिया में जीवन जीने की कला है, और उनकी दुनिया में ह्यूमनिज्म है, उनकी दुनिया में लव है, उनकी दुनिया में अफेक्शन है, उनकी दुनिया में इंडिविजुअलिज्म है, उनकी दुनिया में चैरिटी है, उनकी दुनिया में जेनरोसिटी है, उनकी अपनी दुनिया ब्यूटीफुल है। अगर दुख भी है तो उसको भी वे क्या करते हैं, दे आर इन पोजिशन टू टैकल, दे आर इन पोजिशन टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम। whether the people say that they are escapist, they don't want to live in the real world, whether they want to live in the real world or not, that is another thing। but उनकी जो दुनिया है, उस रियल वर्ल्ड की दुनिया की अगेंस्ट में जाकर के, या उसको छोड़कर कोई एक दूसरी दुनिया बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? अगर ओ टू नाइटिंगल आप पढ़ेंगे, तो नाइटिंगल को
एक सहारा, नाइटिंगेल जैसी खूबसूरत दुनिया कौन ढूंढ रहा है? जानकीर से ढूंढ रहे हैं। ओट टू द वेस्ट विंड पढ़ेंगे तो वेस्ट विंड में जो है क्या करते हैं, शेली अपील करते हैं कि वो लिफ्ट मी एज अ वेव, एज अ क्लाउड, आई इट मीन दैट आई वांट टू गेट योर कंपनी, आई वांट टू गेट योर ब्यूटीफुल कंपनी। सो जस्ट इमेजिन, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट दे डिड। जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी उन्होंने किया, उनमें कितना सिमिलैरिटी है। ये जरूर इनके ऊपर टैग लगेगा कि दे वर escapist, दे वर नॉट इन पोजीशन टू फेस द प्रॉब्लम। तो अनडाउटली ऐसा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो रियलिटी के ग्राउंड पर रहे हैं। जब आप ओ टू नाइटिंगल पढ़ेंगे तो उस ओ टू नाइटिंगल में जो है जानकीर से ये बात करते हैं कि यह जिस दुनिया में मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी नया लव परवान चढ़ने से पहले जो है क्या होता है, अंतिम सांसें ले लेता है। यहाँ पर यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आदमी यंग होने से पहले ही ओल्ड हो जाता है। यह एक ऐसी दुनिया जहाँ पे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं, देर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप हियर। सो सच अ line you will find where there is reality. If William Wordsworth talks about peasant, if William Wordsworth talks about means solitary reaper, one who cuts crop, such a thing, so it means that he is on the ground of reality. लेकिन उनका जो रियलिटी है वो लंदन की गलियों तक सीमित नहीं है। उनका जो रियलिटी है वह जो है केवल दिमाग तक सीमित नहीं है। उनका जो रियलिटी है वह लंदन के लॉर्ड्स और लेडीज तक सीमित नहीं है। उनका जो रियलिटी है वह पब और रेस्तरां तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अपनी रियलिटी को एक नई दुनिया में ले जाते हैं, जो कि लंदन का ओपन फील्ड है, where people are, where people are, but such people have not been appreciated, their works have not been appreciated, they have not been appreciated. So you will come to know that these things are there, these things are there, ये सारी चीजें वहां पर रही है लेकिन उनको अप्रिसिएट नहीं किया गया। इसीलिए कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ है वो पहले मॉडर्न पोएट है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न पोइट्री में या जिसमें है उसमें इक्वलिटी की बात होती है, जस्टिस की बात होती है, और उसमें सबको एक सबके आवाज को उठाने की कोशिश की जाती है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की यही तो खासियत है। तो आप ये बताइए कि जो डिस्क्रिमिनेशन वहां पे देखने को मिलता था, जो लॉर्ड्स और लेडीज केवल पूरे लिटरेचर में देखने को मिलते थे, अब उन लॉर्ड्स और लेडीज की जगह यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड फार्मर्स, यू फाइंड पीजेंट, यू फाइंड द पुअर पीपल, यू फाइंड सच अ पीपल, यू फाइंड। तो इसकी जो शुरुआत होती है वह प्री रोमांटिक से होती है, जहां पे मैंने एक आपका नाम लिया जेम्स थॉमसन का द सीजन। उसके बाद एक दूसरे पोएट आते हैं जिनका नाम क्या था, टॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चैट। दैट पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट पोएम कि एलजी रिटेन इन अ कंट्री चैट, दैट्स अ ब्यूटीफुल पोएम। एंड यू विल कम टू नो कि here is what, there are the two things, here is warning and here is sympathy also. The poet wants whom? The poet wants the rich people। उस जमाने में जहां पे रिच पीपल को सेंटर में रख करके सारी बातें की जाती थी। मॉक एपिक आपका 1714 में आता है, और उस मॉक एपिक में क्या किया गया, बिलिंडा के बारे में बात किया गया, पीटर के बारे में बात किया गया, कट कट डाउन द लॉक ऑफ बिलिंडा उसको लेकर के बात किया गया। उसी एज में ही थॉमस ग्रे जैसे पोएट क्या करते हैं, पुअर विलेजर्स के बारे में बात करते हैं, who have been buried down, who are no more in this world, so you can just see how the things are going to change, कैसे चीजों में बदलाव हो रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं उसी एज में एक ऐसा ग्रुप ऑफ पोएट्स है जो सेंध लगा रहा है, और वह जो ग्रुप ऑफ पोएट्स है वह जो तब्दीली ला रहा है, वह जो बदलाव ला रहा है, यू विल फाइंड दैट कि दैट वाज अमेजिंग सुपर। एंड instead of talking the rich people, instead of talking lords, ladies, gentlemen, gentlewomen, pub, restaurant, coffee house, hotel, whatever the word you would like to use, he's sitting where? He's sitting in a, that is what, that is a graveyard। ग्रेवयार्ड में, इन और वो भी वह ग्रेवयार्ड कैसा है, दैट्स नॉट द ग्रेवयार्ड दैट इज लोकेटेड इन सिटी एरिया where the ministers, lord and ladies are buried down, no, not at all, but he is sitting in a village graveyard। और इतना ब्यूटीफुली वो चीजों को डिस्क्राइब करता है कि द सन इज अबाउट टू सेट एंड देयर इज अ नेल ऑफ द पार्टिंग डे, देयर इज अ लाइन नेल, KNELL, नेल ऑफ द पार्टिंग डे, the sun is about to set, it's the evening time,
Pluff man, yeah, pluff man, they are coming from their field after completing their work. Home, that is the line ki homeward plots his weary ways. Such a thing we find. So what I want to say, you can just imagine that beauty. He's sitting in a village graveyard, open field, open sky. He sees beauty, another type of beauty. Coming back of the cattle, grazing the green grass in their home. The same thing you find with the farmer. Again, the question is that do you find any lads? Do you find any ladies? Do you find any gentleman? Do you find any gentle woman? No, not at all. वहां का पिक्चर का आप इमेजिन करिए, फिर यू विल कम टू नो. He just goes. He further says that in this graveyard there are poor villagers. They are buried down here. They are no more in this world, but they didn't get the opportunity. If they got opportunity, they might be what? They might be William Wordsworth. Sorry, not they might be John Milton. They might be Oliver Cromwell. They might be some other. वो ये कहते हैं कि जिस इस गांव के कब्रिस्तान में जो लोग दफन है, उनको मौका नहीं मिला. अगर उनको मौका मिला होता तो वे क्या हो सकते थे? ओलिवर क्रॉमवेल हो सकते थे. वे क्या हो सकते थे? वे जो है जॉन मिल्टन हो सकते थे. बट दे डिडंट गिव द अपॉर्चुनिटी. दे डोंट हैव एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड. दे वर द सिंपल पीपल. दे वर द रस्टिक पीपल. तो मैं जो क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलाड आता है और प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में जब विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि वी हैव टू यूज रस्टिक लैंग्वेज एंड रस्टिक पीपल, तो रस्टिक लैंग्वेज की बात, रस्टिक पीपल की बात विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले आपको इस पोयम में नजर आएगी. तो इसका मतलब इन लोगों ने उसकी नींव तैयार की, मजबूत नींव तैयार की, मजबूत नींव. That was not made by concrete, that was not made by iron or brick, but ultimately you will come to know clay of wattles. क्ले ऑफ वाटल्स के द्वारा उसको तैयार किया गया. नेचर है, नेचुरल वर्ल्ड है, पीपल के बारे में बात की जाए, सिंप्लिसिटी है, लिसिडिटी है, अ वेरी हम्बल पीपल, जनरस पीपल, उनके बारे में बात की गई है. उसके अलावा देर इज अ वार्निंग, ओपन वार्निंग कि लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयज नॉट होमली जॉयज नॉट डेस्टिनी ऑफ देयर. यू विल कम टू नो कि वो कहते हैं कि जो है द रिच पीपल शुड नॉट लाफ एट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल. जो रिच पीपल है उनको पुअर पीपल की कंडीशन पर हंसना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज डेथ. Undoubtedly one day we will die, sooner or later death is inevitable, and after dying all the things, your palace, your whatever you have gained, whatever you have done, you have to just leave these things, and you will bury it down where the poor people have been buried down. So this is what it's appeal, it's warning, it's sympathy, इस तरह की चीजों का. वरना मटेरियलिज्म के मटेरियलिस्टिक पीपल होते तो उनका अगर सोच होता तो ग्लिंडा की बात करते, ऑल द वर्ल्ड इस ऑल मींस ग्लिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड गेव विद जॉय. ऐसा कि यू लाइक टू फाइंड. So these things you see, these things you find. Again, I would like to tell you कि ये जो चीजें हुआ, ये चीजें ओलिवर गोल्डस्मिथ का डिजर्टेड विलेज में भी यू विल फाइंड. एंड देयर वाज अनदर पोएट विलियम कॉलिंस. William Collins wrote what? William Collins wrote Ode to Evening and other poems he also wrote. But in Ode to Evening, he has personified evening, and you can just see the beauty of evening, the beauty of evening. How the evening has been personified, evening has been presented as a bride, and that beauty of evening, that's marvelous. Means that's so beautiful. There is no word to appreciate that beauty of evening which has been presented by that man. तो वहां पे बिलिंडा की ब्यूटी की बात नहीं हो रही, बल्कि नेचर और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की. जो शाम है वह भी एक नायिका है, वह भी एक दुल्हन के रूप में एक तरह से देखी गई है. तो एक दूसरे तरह के जज्बात, दूसरे तरह के ख्याल, दूसरी तरह की चीजें जो है, आप क्या करेंगे, आप वहां पर उस चीज को देख सकते हैं. आप दूसरी तरह की चीजों को भी वहां पे तस्वुर कर सकते हैं कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज ग्रेजुअली एंड स्लोली. बट देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रोमांटिक पोएट्स एंड प्री रोमांटिक पोएट्स. जो प्री रोमांटिक पोएट्स थे, उन्होंने अपनी पोइट्री में किसी तरह का फिलॉसफी नहीं दिखाई. देर इज नो फिलॉसफी इन देयर पोइट्री. उनकी अपनी पोइट्री में एक अपील है,
लेकिन जिस तरह का फिलॉसफी, पैंथिज्म, मिस्टिसिज्म which you see in the poetry of William Wordsworth, that type of philosophy, that type of philosophy you don't find there, that type of philosophy you don't find there. उस तरह की फिलॉसफी को आप वहां पर नहीं देखेंगे, आप वहां पे नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यह एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर है, दिस पार्टिकुलर एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर यू सी वेयर, दिस टाइप ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी, जो इस तरह का एक्सटर्नल ब्यूटी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस टाइप ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी यू आल्सो सी वेयर, यू आल्सो सी इन रोमांटिक एज। लेकिन एक बदलाव आया, वहां पे एक्सटर्नल ब्यूटी के साथ साथ इंटरनल ब्यूटी भी है। जैसे यू कैन जस्ट से कि सर एक्सटर्नल ब्यूटी क्या है, इफ यू हैव गॉन इन इन अ गार्डन, यू सी द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर, तो आपको अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट लगेगा, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि इन फूलों को खिलाने के पीछे कोई एक शक्ति है, तो आप उन फूलों को एक मीडियम बना रहे हैं उस शक्ति को जानने का। इसका मतलब आपके लिए दे दोज फ्लावर्स आर मीडियम, दोज फ्लावर्स आर सोर्स टू सी, टू नो अबाउट अनसीन पाथ। जब आप ऐसी बात करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब आप दो लेवल पे बात कर रहे हैं। एक तो जो फूल आपको ओपन आई से दिखाई पड़ रहा है, एक उस फूल के पीछे जो शक्ति है, जिसको कि विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं राइजिंग ऑफ द सन में भी जो है एक अनसीन पार्ट देखता हूँ, क्लाइंबिंग ऑफ द मून में भी देखता हूँ, गर्गलिंग साउंड ऑफ द रिवर में भी मैं देखता हूँ। सो मेनी वर्ड्स ही हैज यूज्ड। सो what I want to say, what I want to tell you कि when you talk this way, या when you go with taking these points, always remember that कि romanticism और romantic age अपने में बिल्कुल बिल्कुल अपने में एक अलग टाइप का चीज है। बिल्कुल एक ऐसा चीज है जहाँ पे आर्टिफिशियलिटी आपको नहीं नजर आई, नेचुरल है। जो चीज नेचुरल है, चाहे वहाँ का पीपल होंगे, चाहे वहाँ की लैंग्वेज होगी, चाहे वहाँ का एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड है, इसकेपिस्ट इसकेपिज्म है या इसकेपिस्ट है, दे रोमांटिक पोएट्स वर इसकेपिस्ट वे। जो हार्श रियलिटी है लाइफ का, उस पार्टिकुलर चीज को जो है, उस पार्टिकुलर चीज को वे वहां पे नहीं कर सकते। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, यू कैन जस्ट गो विद दिस पॉइंट, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि इतना सारा चीजें रही है। जस्ट आई वांट टू नो कि चीजें आपको क्लियर हो रही है, एनी प्रॉब्लम? ओके ओके, थैंक यू। सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि हाउ यू कैन टेक दिस थिंग। अब जो एक चैप्टर जो मैंने क्लोज किया, वो प्री रोमांटिक क्लोज किया, और आगस्टन एज को मैंने क्लोज किया। वो सारे पॉइंट्स मैं लिखवा भी चुका हूँ बार बार कि वहाँ क्या क्या चीजें थी, वो सब चीजें अपनी जगह है। When you talk about the literature of these two ages, whether you talk about the restoration literature, whether you talk about Augustan literature, whether you talk about age of sensibility, उन सारे लिटरेचर में स्पेशली पोइट्री एंड ड्रामा, स्पेशली पोइट्री एंड ड्रामा, बिफोर रोमांटिक एज इफ यू टॉक अबाउट restoration drama, if you talk about restoration poetry, if you talk about आपका पोइट्री इन ऑगस्टन एज, एक पॉइंट बहुत क्लियर आपको हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि ये जो आवाज थी, किसकी आवाज थी? एरिस्टोक्रेटिक पीपल की। एरिस्टोक्रेटिक पीपल उनकी आवाज थी जिनके पास सब कुछ था, अपॉर्चुनिटी है, रिसोर्सेज है, उनके पास ईच एंड एवरीथिंग दे हैव, दे वर अवेलिंग दीज थिंग्स, दे वर एंजॉयिंग दीज थिंग्स। जस्ट एज यू कैन सी इन इंडिया कि सर्दी के मौसम में किसान जो है, दे आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग ओपन फील्ड में रह करके कि वट एवर द बिल हैज बीन पास्ड बाय गवर्नमेंट दैट शुड बी मीन्स उसको वापस लिया जाए। सो व्हाट आई वांट टू से कि उनकी आवाज कहाँ तक पहुंच रही है, कहाँ तक उसको लोग महत्व दे रहे हैं। और एक ऐसा वर्ग भी होगा कि जहाँ पे लगातार बातें होती है कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास ये हुआ, ये पहने, ये खाए, ये सुने, आज दिस थिंग। तो उस समय भी आप देखेंगे कि उस समय के ड्रामा में व्हेन यू टॉक अबाउट हीरोइक ट्रेजेडी, तो इन हीरोइक ट्रेजेडी इफ यू टेक ओनली वन एग्जांपल, एंटनी और क्लियो, दैट वाज द वर्ल्ड वेल लास्ट, या आप ये कह सकते हैं कि दैट वाज एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। तो ऑल फॉर लव, सॉरी, ऑल फॉर लव, और बेस्ड ऑन शेक्सपियर एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। So you can just imagine ki, do you find that type of love in middle class? Do you find that type of love in the people living means belong to lower class? No, not at all. That type of bravery, that type of love,
दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड योर्स लाइफ। यू विल कम टू नो वहां पे जो भी दिखाया गया, जो बिलिंडा के बारे में बात किया गया, पीटर के बारे में बात किया गया, चार्ल्स सेकंड के बारे में बात किया गया, ऐसा लगता है या दीज थिंग एग्जिस्ट बट दे आर नॉट द होल सोसाइटी। व्हेन यू टॉक अबाउट द सोसाइटी, पूरा समाज जब आप दिखाना चाहते हैं तो वह पूरा समाज उस समय के प्रोज में नजर आता है, उस समय के नॉवेल में नजर आता है, जो एक बेहतरीन काम हुआ था, हाईली अप्रिसिएबल, हाईली एडमिरेबल। लेकिन उसी चीज को उल्टा कर दिया जाता है रोमांटिक एज में। जो काम वहां के प्रोज ने किया, वही काम रोमांटिक पोएट्स ने पोइट्री में कर दिया। उन्होंने पोइट्री में क्या कर दिया, जैसे यू विल कम टू नो कि रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द 18th century, especially those who belong to middle class, those who belong to lower class, you can just see their presence in the prose of the 18th century in the novel. In the same way, you find the vices of the people of the lower class in romantic poetry. अब आप कुछ ना करिए, आप केवल एक ही चीज डिस्कस कर लीजिए, तो सॉलिटरी रीपर कौन है? भाई फसल काटने वाली पर कौन जो है कविता लिखना चाहता है उस जमाने में, जबकि बिलिंडा का इंपॉर्टेंस रहा हो, जबकि जो पीटर का रहा हो, जबकि जो है सलमान चिटोफिल जैसा रहा हो, हु हैज द पोटेंसी टू राइट द पोएम? अगर लिखा भी गया तो कौन ये उम्मीद करेगा कि इनको इतना महत्व दिया? यू विल कम टू नो नो नथिंग एट सॉलिटरी रीपर जैसा ब्यूटीफुल पोएम लिखा गया, और हाईलैंड गर्ल को उस तरह से करके जो है, सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा जो उनको छोटी छोटी पोएम, डैफोडिल पर हु हैज द टाइम टू कंपोज द पोएम, या इवन यू गो आई गो, many times we have gone Chandrasekhar Park in Allahabad. We all have seen in spring the blooming of the flower and the chirping of the bird, but who has time? ये तो आपने वर्dsworth को पढ़ करके कुछ भावना हमारे अंदर जगती हम लोग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वर्dsworth के अंदर एक कब जगी होगी? ऐसा तो कुछ नहीं रहा। लेकिन नो, उसके पहले ये बातें कहाँ पे थोड़ा बहुत हो चुकी है? एलिजाबेथन एज में। तो जो रोमांटिक एज है, मैं ये नहीं कहूंगा कि रोमांटिक एज डुप्लीकेट है या एलिजाबेथन एज का कॉपी है, नो नॉट एट ऑल। जो कुछ एलिजाबेथन एज में अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने का काम रोमांटिक पोएट्स ने किया। तो जो जो एलिजाबेथन लिटरेचर में you find shepherd, shepherdess, especially the shepherd's calendar, you find lyric, you find sonnet, you find ode, you find lyric, but you will come to know कि वो जो जॉब जो पोइट्री में वहां पे इनकम्प्लीट है, बिकॉज देयर वर ओनली सम पोएट, जिसमें आप एक नाम ले सकते हैं एडमंड स्पेंसर का, सर फिलिप सिडनी का, विलियम शेक्सपियर का, सर थॉमस यार्ड का, हेनरी हार्ड सरे का। उन्होंने जो भी काम किया, उस पार्टिकुलर काम को यहाँ पे लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। दिस इज वाई दैट पार्टिकुलर थिंग मीन्स रोमांटिक, ये जो क्या किसके नाम से जाना जाता है, रिनेशा ऑफ वंडर या रिवाइवल ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। यू फाइंड हियर व्हाट यू फाइंड हियर द इम्पैक्ट ऑफ एडमंड स्पेंसर एंड जॉन मिल्टन, उनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। So such a great personality, William Wordsworth, you find, who calls himself what who calls himself high priest of nature, who called himself true worshipper of nature, जहाँ पे पैंथिज्म है, जहाँ पे मिस्टिसिज्म है, एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर, इंटरनल ब्यूटी ऑफ नेचर, जहाँ पे ब्लैकवर्थ ने कंपोज किया गया, ओड लिखे, लिरिक लिखे, सोनेट लिखे, एपिक भी उन्होंने लिखा, सब्जेक्टिविटी और personality है, poetry is the image of man and nature, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings, it takes its origin from emotion recollected in tranquility, poetry is the countenance of all the branches of knowledge, so beautiful uh, quotations given by this man you find in preface to lyrical ballad, जो रस्टिक लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, रस्टिक पीपल के बारे में बात करते हैं, वट एवर द पोएम यू टेक, वट एवर द पोएम यू टेक, यू विल फाइंड दीज थिंग्स, उनकी पोएम में ये चीजें आपको नजर आएंगी। ऐसे ही whether you take Tintin away, whether you take Ode on the Intimations of Immortality, दो तीन चीजें, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर एंड द रोल ऑफ सोसाइटी, समाज क्या है, उसका क्या रोल है, और रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। अगर आप मैन है, आपको अगर ऑक्सीजन मिल रहा है, एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, तो हु इज प्रोवाइडिंग दिस थिंग? कोई तो ऐसा है जो कि ये प्रोवाइड कर रहा है, कोई तो ऐसा जो आपको ये चीज दे रहा है। तो वर्ड्सवर्थ इन ऑब्जेक्ट के माध्यम से वर्ड्सवर्थ वांट्स टू रीच, वर्ड्सवर्थ वांट्स टू नो who is behind these objects, who manages these things, some unseen power, some unseen power when you read Tintin away.
Especially you have to go with Tintin Abbey, especially you have to go with What Are the Intimations of Immortality. The world is too much with us. जब वो कहते हैं the world is too much with us. We are only busy in earning and spending money. We don't have at all. केवल एक का ही काम करना है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ को उन्होंने कैसे क्रिटिसाइज किया। और वह जो मटेरियलिस्टिक लाइफ थी उन्होंने देखा था अगस्टन एज में कि हाउ द पीपल आर बिजी ओनली इन डूइंग वन जॉब एंड व्हाट वाज दैट जॉब। केवल पैसा कमा रहे, पैसा खर्च कर रहे, लेट एंड सून, लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, दे ऑल आर डूइंग ओनली वन जॉब। So you will come to know these things. You will get these things, how these things have been beautifully described by William Wordsworth. Other thing I want to tell you कि when you take these things, विलियम वर्ड्सवर्थ का तो उनका हर पोयम में ये फिलॉसफी, ये बेसिक चीजें आपको नजर आएगी। तो अब उसके बाद अगर आप इसके अलावा चलते हैं तो यू फाइंड अनदर पोएट दैट इज एस टी कॉलेज, जिन्होंने सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को जन्म दिया। ओपीएम ईटर थे और उसके बाद जो है उन्होंने कुबला खान लिखा, क्रिस्टेबल लिखा, और उनकी पोइट्री में जो है तमाम चीज। लेकिन उनको अगर याद किया जाएगा, इसलिए याद किया जाएगा कि ही मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी बाय राइटिंग व्हाट, बाय राइटिंग बायोग्राफिया लिटरेरिया इन 1817। उसको उनको याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो इमेजिनेशन इट डिजॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स, और जो आपका वो है क्या नाम है, ये फैंसी है, दैट इज फिक्सिटीज एंड डिफिनिटीज। तो इस तरह की चीजें आपको कि एक आपको नेचुरल वर्ल्ड में ले रहा है, एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड में, एक कॉन्शियस लेवल पर ला रहा है, एक अनकॉन्शियस लेवल पे ला रहा है। एक दूसरे पर टीबी शैली है जिनमें ओल्ड जनरेशन के, जिसपे रिवोल्यूशनरी स्पिरिट ही भरा हुआ है। उनको कॉलेज से इसलिए निकाल दिया जाता, तो कहते हैं उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ही वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर देयर इज नॉर्म्स, रूल एंड रेगुलेशन। ही बिलीव्ड इन फ्री, ही बिलीव्ड इन इंटायर फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम उन्होंने विश्वास किया, लिबर्टी उन्होंने विश्वास किया। अगर ये सोचिए ये नियो क्लासिकल एज में होते जहां इतना स्ट्रिक्ट नॉर्म्स था, तो व्हाट ही डिड दैट टाइम, वो क्या करते उस समय जो है। एंड अदर थिंग यू फाइंड जॉन कीट्स, पोएट ऑफ ब्यूटी, जिन्होंने इतना सो मेनी वर्ड्स उन्होंने लिखा। उसमें भी उस किस तरह का ब्यूटी, वो टू नाइटिंगेल में, वो टू नाइटिंगेल के अलावा वो टू साइकी, वो टू आटम, वो टू मेलंकली, दीज थिंग्स यू फाइंड। When you talk about except poetry in prose, you come with whom? You come with चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का भी मैंने आपको बताया कि उनका अपना एसे जो था, खासकर ड्रीम चिल्ड्रन, वहां पर भी जो है पर्सनालिटी नजर आती है, प्रोज पोइट्रिक ऐसे टाइप का हो जाता है। उनका जो एसे रहा उसमें अपनी दादी फील्ड के बारे में बात किया है, एलिस डब्ल्यू के बारे में बात किए हुए, और अपने बच्चों के बारे में जो इमेजिनेटिव चिल्ड्रन है, और अपने भाई के बारे में उन्होंने बात किया। तो एक दूसरे तरह का एसे, वह ऐसे नहीं जो कॉफी हाउस में हुआ, वह ऐसे नहीं जो किसी ऐसी जगह पे लैंडलॉर्ड्स या लेडीज के बारे में बात हुआ, लेकिन इसमें जो ऐसे था वह इनफॉर्मल ऐसे था, जिसमें वह इंटीमेसी दिखाते, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद रीडर्स यू फाइंड वहां पे। इसी तरह से यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड नावल। कल मैंने नावल में भी डिस्कस किया था कि गॉथिक नावल आया था जिसमें हॉरिबल एटमॉस्फेयर, डिस्पेइंग एटमॉस्फेयर है। होरेस वॉलपोल ने उसको जो 1765 में क्रिएट किया। और उसके अलावा मैंने डोमेस्टिक नावल की भी बात किया था कि कैसे जेन ऑस्टिन ने उस काम को आगे बढ़ाया, जिसमें गुड और बैड मैरिजेस का कंपैरिजन है, और मेजर और माइनर प्लॉट है, आयरनी और सटायर का यूज किया गया है, और फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर्स को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। हीरोइन उनमें ज्यादा इंपॉर्टेंस रही, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट रहा, मिडिल क्लास के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो चाहे आप नावल ले लीजिएगा, चाहे आप प्रोज ले लीजिएगा, राजा रानी को कोई जगह नहीं दी गई। ओवरऑल जो इतना मैं अभी तक बताया उसमें यही रहा, बिलिंडा को कोई यहाँ पे मार्क नहीं दिया गया, 4 सेकंड जैसे लोगों के बारे में कोई बात नहीं की जाती है। ना तो कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट का ज्यादा असर रहा, केवल एक चीज को छोड़ करके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को छोड़ करके। तो आई हैव डन माई जॉब। मैंने आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से संवारने की, सजाने की इसको कोशिश की है कि वट एवर अभी तक जो मैंने पढ़ाया, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से इस लेक्चर में, वट एवर द टाइम आई गेव यू, उसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन, नथिंग मोर इन माई हैंड, and I will meet you tomorrow at 8 a.m. to conduct our test. And today there will be no class at all. If you want to say anything, you can say. किसी को अगर, या या आई थिंक कि जो कुबला खान है दैट इज अ पोयम, लेट मी चेक इट बिकॉज आई मिस्ड द पार्टिकुलर वर्क वेदर इट इज द पार्ट ऑफ ड्रामा। अगर दैट विल बी अ ड्रामा तो दैट विल बी अ लिरिकल ड्रामा, दैट विल बी अ लिरिकल ड्रामा। कुबला,
देखिए, एक्चुअली द कैरेक्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट प्लेस वेयर यू आर थिंकिंग, अनडाउटली द कैरेक्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट प्लेस. But just I want to say कि when you want to know about Kubla Khan, then we have to go with that particular point. We have to take, we will take college as a poet. Then we will discuss there. Then we will discuss it. So I think now I have to conclude this lecture. Okay, thank you listening me. Uh, yeah, Shilpi ji. प्लूटार्क एक्चुअली जो सोर्स है, जो भी रोमन प्ले है, उस रोमन प्ले का जो सोर्स है, दैट इज बेस्ड ऑन प्लूटार्क लाइफ. Plutarch, that was an author, not Pluto. Plutarch was an author. He wrote a life, that was the work of that man, Plutarch's life. Holinshed was another author. Holinshed Chronicle, it covers the chronicle, it was the history. It covers the history of England, and I think Scotland and Ireland, yeah, leaving Ireland, he has written these things. So it covers all the kings who were born there, who were born in England and Ireland. But when you talk about Plutarch's life, then Plutarch's life also covers history and Roman plays. Okay. I can't take any question more because I have to go somewhere. Whatever you want to say, you can drop message.